Good morning, everyone. Welcome back to Economics. So, we were doing chapter constraint optimization. So, like in this few minutes, I will just revise what we have done in the last lecture. So, in last lecture, which is important for this lecture also, we have introduced Lagrange function. So, what was the Lagrange function and how do we optimize using the Lagrange function? So, for optimization, we are always given objective function and constraint. So to create Lagrangian function, how we write it as Lagrange L is equal to objective function minus this new variable that was introduced is Lagrange multiplier, and this is how we write the constraint, getting like everything on left hand side. And then we found out the first order conditions, necessary conditions. How did we find out? Differentiating Lagrange function with respect to first variable, that is x, equating it to 0. Differentiating Lagrange function with respect to second variable, equating it to 0. And when we differentiate with Lagrange multiplier, we obtained the constraint function. So what was the process then? We used 1 and 2 to find relationship between y and x, and then substitute it in the constraint function, and then we find out the value of y, x, and c. So that is how we proceed using Lagrangian function to optimize the objective function. So now I will start the class with the today's class with a question so as to revise and recapitulate what you have learned. Question. Let us write out the question first. U is a function of xy which is given as 100 minus e to the power minus x minus e to the power minus y, subject to px plus qy is equal to m. This is the question. So how do we proceed? Creating Lagrangian function Lxy is equal to, this is the objective function, इसको यहां लिख देते हैं, एंड कंस्ट्रेंट को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस Lagrange multiplier and constraint function. So first order conditions, differentiating Lagrange with respect to first variable, that is x. So this is 100 constant, it will become 0 when we differentiate it with respect to x, and this y is, again, when we are partial differentiating, this y is also a constant, so this again becomes constant. So this and this is 0, so this is the only variable we have. Minus lambda, and here this is the only thing associated, like multiplied with x, so it will become lambda p, and all of that are constant equal to 0. Now we know that differentiation of e to the power x is e to the power x, so e to the power minus x, but again here it is minus x, so we will use
chain rule. Sorry. Minus lambda p is equal to 0, which becomes, this becomes minus 1, which becomes e to the power minus x minus lambda p is equal to 0. This is the first order conditions we got by differentiating with respect to first variable. Now, when we differentiate with respect to second variable, what do we get? This becomes constant, this becomes constant. This is the only variable. So going again with the similar way, we get minus of derivative of e to the power minus y dot derivative of using chain rule minus lambda. This becomes constant, this is constant. This is the only variable y, which becomes minus lambda q. So we get e to the power minus y minus lambda q is equal to 0. This is the second condition. I hope there is no doubt till this part. So now we use 1 and 2 to find out the relationship between x and y, so that we can substitute in the constraint function, constraint variable, constraint function. So we will take ratio of 1 and 2. That is the easiest and shortest way to get relationship between x and y. E to the power minus x, e to the power minus y, lambda q, lambda cancels out. It becomes e to the power minus x minus of minus y is equal to p upon q. Sorry. So when we take log, so we are here taking log on both sides. We are taking log because we want to find out the relationship between x and y. If we don't take log, then we won't obtain that. So, and there is a property log e to the power a is equal to a log e, and log e is nothing but 1. So minus x plus y, log e becomes 1 is equal to log p by q. This is eraser. Minus of x plus of y dot 1. So here would be bracket. That is we obtain y is equal to x plus log p by q. This is the third equation. So I hope there is no doubt till this. So we have made Lagrangian function. We have differentiated with respect to first variable, with respect to second variable, and we have taken the ratio of the FOCs to find out the relationship between y and x. And then what do we do next? We have to substitute this in the constraint function. What was the constraint function? Px plus qy is equal to m was the constraint function. What was y? Y was x plus log p by q. X plus log p by q is equal to m.
taking this is a constant thing. So if we take x common in this 2, and this part will go on that side. Sorry, x is, we take x common. X we have taken common. X into p plus q is equal to this. So we obtain x is equal to m minus log p by q upon p plus q. So this could also be simplified into minus. We know that log a by b is equal to log a minus log b. And here it is also multiplied by q. There was a mistake. This q into log p by q. So minus q log p minus log q upon p plus q. This is the optimal value. Then using the relationship between y and x plus log p by q. So y star will be x star plus log p by q. Using this minus m minus q log p minus log q minus minus will become plus q log q upon p plus q log p by q. So what we have done in this is, this was the constraint. This was the constraint. And in the previous slide, we have find out the relationship between y and x. So using that, we have substituted y as a function of x. And then what we have done, we have taken x common in these two, x into p plus q, and we have multiplied q with this and brought it to this side, q log p by q, and just then we have divided by the p plus q. So we have obtained this x star. And then also we have to find out y star. हमें y star में निकालना है. So y star क्या रिलेशनशिप था? Y star is equal to x star plus log p by q. ये वाला था. So हमने just जो आया था x star उसका वैल्यू पुट कर दिया है. And then we have to simplify. Q log p plus q log q. Here it will be multiplied by p plus q, taking the LCM, log p by q upon p plus q. Open this up. So q log p plus q log q. We will multiply and open that up. So p plus q into log p minus log q upon p plus q. So here you can see that q into log p is coming, and it has positive sign, and here it is a negative sign. So this and this into this will cancel out.
and you can also see that q log q, and here q and minus log q. So this will become minus q log q. So that will also cancel out. So we'll minus, let's expand it so it becomes easier to see. आसानी होगा थोड़ा देखने में. q log q प्लस p log p माइनस p को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों से, देन q को कर रहे हैं. q log p माइनस q log q अपॉन p plus q. So this q log p is cancelling out with this, and this q log q is cancelling out with this. So we are remaining with m plus p log p minus p log q upon p plus q. So we have gotten the value of x star and y star both. Okay. So again I am repeating, this was the constraint. ये constraint था. हमने पिछले स्लाइड्स में y और x के बीच में रिलेशनशिप निकाला था. ठीक है, वो क्या था? y was x plus log p by q. सो हमको जब भी y और x में रिलेशनशिप निकालते हैं तो हमको y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y कंस्ट्रेंट में डालना होता है. तो कंस्ट्रेंट में डाला हमने, x कॉमन निकाला एंड बाकी चीज को उधर ले गए एंड देन सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई में हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है. यूजिंग क्या प्रॉपर्टी होती है? लॉग a बाय b इज लॉग a माइनस लॉग b, जो कि यहां यूज हुई है. एक्स स्टार की निकल गई वैल्यू एंड वाई स्टार की निकल जाएगी. कैसे निकल जाएगी? एक्स प्लस पी बाई क्यू था वाई, बस सब्स्टिट्यूट किया है एंड देन सिंप्लीफाई करके ये आ गया है. सो इस तरीके से हमने एक्स स्टार और वाई स्टार की वैल्यू निकाल ली है. बट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, हमको लैम्डा की वैल्यू भी चाहिए होती है. सो लैम्डा निकाल रहे हैं. अब लैम्डा कैसे निकलेगा? लैम्डा यूज निकालने के लिए आप या तो यू कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन और इधर यू कैन यूज सेकेंड इक्वेशन. सो कुछ भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं. सो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं. e to the minus x is equal to lambda p. E to the minus x is equal to lambda p. That is e to the power minus x by p is equal to lambda. या फिर इसको यहीं से डायरेक्ट ही हम लोग लॉग ले सकते हैं. सो इसको अनडू कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा प्रॉपर्टी. log e to the power minus x log lambda p. So this will become minus x और x स्टार की वैल्यू क्या थी? ये रहा, माइनस m माइनस क्यू लॉग p प्लस, उसको ऊपर अप कर देता हूं तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्लस क्यू लॉग क्यू
अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू, एंड अगेन लॉग लैम्डा डॉट P हो जाएगा हमारा लॉग लैम्डा प्लस लॉग P। सो लॉग P को इस तरफ ले आते हैं, Q log P प्लस Q log Q, P प्लस Q माइनस लॉग P। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस को सबसे, माइनस M प्लस Q log P माइनस Q log Q माइनस P log P एंड माइनस Q log P। ये बस हमने यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। तो क्या कुछ है जो कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है कैंसिल आउट, Q log P Q log P, एंड वी गेट माइनस M माइनस Q log Q माइनस P log P अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू लॉग लैम्डा। सो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, वरना लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट ये e टू द पावर हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज it will just becomes lambda is equal to e to the power this entire thing minus M minus Q log Q minus P log P अपॉन P प्लस Q। सो ये हमारा आ गया लेग्रांज मल्टीप्लायर। सो यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाता है। सो इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट इज प्रूव दैट एक्स एंड वाई आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। प्रूव दैट एक्स एंड वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 एज अ फंक्शन ऑफ पी। मैं बस एक्स के लिए करूंगा, आपको वाई के लिए खुद ट्राई करना है। एक्स एंड वाई होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। सो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस ऑफ डिग्री, डिग्री के इज डिफाइंड एज इफ एफ टी एक्स एफ टी वाई, कि हम एक्स और वाई की जगह पे टी एक्स और टी वाई पुट करेंगे तो टी कॉमन आ सकता है, टी टू द पावर के इंटू एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो दिस इज, if this condition is satisfied then it is homogeneous of degree k, function is homogeneous of degree k। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि इट इज अ फंक्शन विच इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। सो हमारा एक्स क्या आया था? एक्स स्टार व्हाट वाज एक्स स्टार? m माइनस क्यू लॉग p माइनस m माइनस क्यू लॉग p प्लस क्यू लॉग q प्लस क्यू लॉग q अपॉन p प्लस q।
ये आया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किस जो एक्स्ट्रा आया है, ये एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ये फंक्शन दिख रहा है एम, क्यू एंड पी का, बिकॉज दीज आर द वेरिएबल्स हेयर। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ, लेट उसको हम नाम देते हैं एच दे देते हैं, क्योंकि वी यूज जी एंड एफ। सॉरी, ये है। तो लेट्स फाइंड आउट एच, टी पी, टी क्यू एंड टी एम, विच बिकम्स, जहां जहां एम है वहां वहां हम टी एम लिखेंगे, और जहां जहां क्यू है वहां हम टी क्यू लिखेंगे। लॉग टी पी प्लस टी क्यू लॉग टी क्यू पॉन टी पी प्लस टी क्यू। सो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग, दिस इज टी डॉट पी, इट इज लॉग ए प्लस लॉग बी, सो टी एम माइनस टी क्यू लॉग टी प्लस लॉग पी प्लस टी क्यू लॉग टी प्लस लॉग क्यू अपॉन टी पी प्लस टी क्यू। सो यहां पे आपको दिखेगा इट इज टी क्यू लॉग टी मल्टीप्लाई बाई टी क्यू लॉग पी, एंड इधर टी क्यू लॉग टी है विच इज ऑपोजिट साइड, तो टी क्यू लॉग टी क्यू लॉग टी कैंसल आउट। सो ये वाला एलिमेंट कैंसल आउट हो जाएगा, सो विल बी रिमेनिंग विद माइनस टी क्यू लॉग पी प्लस टी क्यू लॉग क्यू अपॉन टी, टी कॉमन ले लेते हैं, पी प्लस क्यू। यहां पे भी आप देख सकते हैं, आप टी कॉमन ले सकते हैं, टी कॉमन ले सकते हैं, एम माई क्या बचेगा, क्यू लॉग क्यू अपॉन टी पी प्लस क्यू। जिसको कि मैं टी टू द पावर वन, टी टू द पावर वन, सो इट बिकम्स टी टू द पावर जीरो। और ये क्या था, ये जो पूरी चीज है, ये क्या है हमारी, ये यही है एम माइनस क्यू लॉग पी प्लस क्यू लॉग क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, सो विच इज, और उसको हमने डिफाइन किया था एच के नेम पे। सो क्या हुआ, एच टी पी टी क्यू टी एम इज इक्वल टू टी टू द पावर जीरो एच पी क्यू एंड एम, एंड दिस के इज जीरो, सो इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। क्लियर है? होमोजीनियस की डेफिनेशन ये थी, एक्स स्टार की वैल्यू डाली, उसको फंक्शन बोला, देन हमने उसमें वैल्यू डाली, और वो ऐसा ऐसा दिखेगा। सिमिलरली आप वाई स्टार के लिए कर सकते हैं, उसका भी सिमिलर प्रोसेस होगा, सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, सारी प्रॉपर्टी जो यूज हुई हैं वो सेम होगा, एंड इट विल अगेन बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। बट इसका सेंस क्या है, व्हाट इज द सेंस? ये बोल रहा है कि एक्स जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पी क्यू और एम सबको चेंज करते हैं। सो ये क्या था, ये यूटिलिटी फंक्शन था, और जो कंस्ट्रेंट था आपका बजट कंस्ट्रेंट था। सो आप खुद सोच सकते हैं कि पी एंड क्यू प्राइसेस ऑफ गुड्स थे, एम एम वॉज द इनकम, कि आपने प्राइस भी डबल किया, क्यू भी डबल किया मान लो, और इनकम भी डबल किया। सो आपका जो एक्स्ट्रा जो था
दैट ऑप्टिमल एक्स्ट्रा दैट यू हैव ऑब्टेन्ड, वो तो चेंज नहीं होगा, सब कुछ डबल हो गया है तो दैट इज व्हाट दिस थिंग इज सेइंग, एंड दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड फंक्शंस। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि इफ प्राइसेस of goods, of all the goods and income rises by same proportion, then the individual demand will not change. So ये क्वेश्चन यहाँ एंड होता है। नाउ अब हम मूव करते हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर के हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक, तो अब हम मूव करते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर? इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, या सिर्फ बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर। लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्या था? दिस दिस लैम्डा वाज द लैग्रेंज मल्टीप्लायर। एंड ये लैम्डा किसके साथ अटैच होता था? ये लैम्डा अटैच होता था, अगर आपको याद है, कंस्ट्रेंट के साथ। लैग्रेंज फंक्शन में ये दोनों साथ में दिखते थे। सो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हाउ द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसका ऑप्टिमल में, व्हेन यू हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्टार एंड वाई स्टार, ऑप्टिमल में क्या कैसे चेंज होगा वो वाला फंक्शन की वैल्यू, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू, व्हेन यू चेंज द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है? सी है इस चीज में। तो जब आप कंस्ट्रेंट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, जो भी, सो इजी है, इंक्रीज ले लेते हैं। सो इफ वी इंक्रीज द कंस्ट्रेंट बाय 1 यूनिट, देन हाउ द वैल्यू फंक्शन चेंजेस, या बाय हाउ मेनी यूनिट्स द वैल्यू फंक्शन चेंजेस, तो वो बताता है ये लैम्डा। ठीक है, दिस टेल यू हाउ द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन, और ये वैल्यू फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ही, जब ऑप्टिमल में हम वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सो हाउ द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन चेंजेस व्हेन कंस्ट्रेंट चेंजेस बाय 1 यूनिट। ठीक है, सो दिस इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यूटिलिटी सब्जेक्ट टू इनकम कंस्ट्रेंट। सो लैग्रेंज मल्टीप्लायर जो भी उसके साथ एसोसिएटेड है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर लैम्डा, वो बताएगा कि लेट सपोज आपका इनकम 1 यूनिट से इंक्रीज होता है, सो आपका यूटिलिटी कितने से इंक्रीज होगा? ठीक है, वो लैम्डा बताएगा। ठीक है, इसलिए हम जब भी लैग्रेंज मल्टीप्लायर सॉल्व करते हैं तो ट्राई करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू भी निकालें। एंड सिमिलरली दूसरा इकोनॉमिक आपको एग्जांपल देता हूं कि कॉस्ट फंक्शन है एंड प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दैट वी वांट टू मिनिमाइज, एंड प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमारा कंस्ट्रेंट। सो उस केस में लैम्डा बताएगा कि इफ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्यू बाय 1 यूनिट, देन कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगा, हाउ द कॉस्ट चेंजेस। सो उस केस में लैम्डा बताएगा हाउ द कॉस्ट चेंजेस इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड बाय 1 यूनिट। इस लैम्डा को हम शैडो प्राइस ही बोलते हैं। शैडो प्राइस, ठीक है, शैडो प्राइस ऑफ कंस्ट्रेंट या रिसोर्सेस, जो भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन हाउ द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन चेंजेस व्हेन कंस्ट्रेंट चेंजेस बाय 1 यूनिट। एंड कंस्ट्रेंट इसमें क्या था? इसमें कंस्ट्रेंट था सी, एंड लैम्डा इज आल्सो नोन एज शैडो प्राइस ऑफ
कंस्ट्रेंट या रिसोर्सेस. सो दिस इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर. आई होप कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी था. इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, बट आई डोंट थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. बट थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी मैं कराने की कोशिश करूंगा मैथमेटिकली भी. वो बस 5 मिनट में कर देंगे हम, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस के लिए. सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन. सो ऐसा करता हूं, पहले मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं. अच्छा नहीं, क्वेश्चन नहीं, पहले आपको देखो क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है. आपको सिंपल मैं एक प्रोसेस बता देता हूं पहले क्या फॉलो करते हैं. ये बस समझाने के लिए है, ये लिखना जरूरी नहीं है. सो जब जी एक्स वाई वॉज इक्वल टू सी कंस्ट्रेंट एंड एफ एक्स वाई हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था. सो अल्टीमेटली जो हमारा एक्स स्टार है वो भी फंक्शन ऑफ सी होता है कंस्ट्रेंट, एंड जो वाई भी है वो भी फंक्शन ऑफ सी होता है. ठीक है. तो जब सी चेंज होता है तो आपका ऑप्टिमल एक्स स्टार एंड वाई स्टार, दैट इज ऑप्टिमल वैल्यूज, वो दोनों चेंज होता है. ठीक है. सो अल्टीमेटली दोनों चेंज होता है. सो वी गेट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ सी एंड वी गेट वाई एज ऑल्सो एज अ फंक्शन ऑफ सी, ऑप्टिमल वाई. सो अल्टीमेटली क्या होता है, व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली. ये सिर्फ जो एफ है दैट इज ऑल्सो बिकम्स अ फंक्शन ऑफ सी ओनली. दिस बिकम्स फंक्शन ऑफ सी ओनली. ठीक है. सो इसलिए डी एफ स्टार सी बाय डी सी इज लैम्डा स्टार सी. ये रिलेशन आपको नोट डाउन करना है. और वी कैन से दैट optimal at optimal value of the function, objective function, this is the relationship between Lagrange multiplier and how the, so this is the important, ये आपको लिखना है. So any change in objective optimal value function can just be find out by Lagrange multiplier into जितना change हुआ है. And change has to be small, ध्यान रखना. DC DC हमेशा small होता है, ये हमने पढ़ा है प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी. So important, this is important, write down this. ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन चेंज होता है लैम्डा स्टार सी इंटू डीसी से.